आज से 20 वर्ष पहले यानी वर्ष 2000 में प्रणब मुखर्जी जी न्यूज के स्टूडियो भी आए थे, यहीं पर जहां से आज मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि जी के साथ उनके संबंध हमेशा बहुत खास थे, बहुत स्पेशल थे। और जब भी कभी हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारे किसी कार्यक्रम में शामिल होइए, तो वो हमेशा आने की कोशिश करते थे और आते भी थे। जो इंटरव्यू अब मैं आपको उनका दिखाने जा रहा हूं, वो इंटरव्यू हमने तब लिया था जब वो हमारे स्टूडियो में आए थे, और उस समय हमारे उस कार्यक्रम के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो कार्यक्रम था आपातकाल के ऊपर, इमरजेंसी को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी, और वो जानते थे कि मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। इमरजेंसी को डिफेंड करना किसी भी कांग्रेसी नेता के लिए आसान नहीं था। इमरजेंसी एक ऐसा विषय है, आज भी हम जब किसी कांग्रेस के नेता से बात करना चाहते हैं तो वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। प्रणब मुखर्जी सच्चे कांग्रेसी नेता थे, लेकिन फिर भी इमरजेंसी जैसे विषय पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, और उस सवाल का क्या जवाब दिया था, इसी जी न्यूज के स्टूडियो में बैठकर आज आपको देखना चाहिए। आज से लगभग 20 साल पुरानी बात है। प्रेस सेंसरशिप, जजों के तबादले, स्टरलाइजेशन, इस सब का कुछ एक्सप्लेनेशन है कांग्रेस पार्टी के पास? मैं तो बताया, जो इमरजेंसी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन and naturally its impact would be extraordinary. It is not a normal situation, and that's why the decisions were also not normal. They were also abnormal. No, it's not that point. You are talking. Whenever there is an emergency situation, in that emergency situation, there are certain impact on the fundamental rights, on the functioning of the judiciary, on the functioning of other various organizations. Therefore, it is not correct to compare an ordinary situation with an extraordinary. हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि उस समय आप कन्विंस थे। अब 25 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि वो एक फैसला गलत था, हर तरफ उस फैसले की आलोचना हुई? Look, this debate took place immediately after people also gave their verdict. It is still a debatable issue, there is no doubt in it. And there are somebody who feels that it was not the correct decision. Somebody feels that it may not be correct decision, but it was an inevitably necessary decision. So far I am concerned, I cannot just sit on value judgment from the hindsight. But this much I can tell, that at that point of time, what was considered to be necessary was being done. And what happened after that, it was not less than इमरजेंसी एक्सेसेस। मिस्टर मुखर्जी, सच्चाई ये है कि उस समय प्रेस सेंसरशिप हुआ, हजारों लाखों लोगों को जो है उनकी स्टरलाइजेशन हुआ, प्रताड़ित हुए, लेकिन जो ये फैसला करने वाले थे उनमें से इनफैक्ट किसी भी का भी कुछ हुआ नहीं, बाद में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाह कमीशन ने आपके बारे में भी लिखा है कि आप उस समय रेवेन्यू एंड बैंकिंग मिनिस्टर थे, आपने भी अपनी पावर्स का मिसयूज किया। बिकॉज जस्टिस शाह केम टू द कंक्लूजन टोटली ऑन अ डिफरेंट एरोनियस रीडिंग। One point I would like to point out, that the whole procedure of Justice Shah was challenged by me in the High Court. And High Court gave its verdict. The then Janata Party government did not go for appeal against it, and that is the law of the land. That the way Justice Shah conducted Shah Commission, the procedurally, it was totally wrong, and that is the law of the land. That plea has been taken by umpteen number of persons later on. Mr. Mukherjee, so if you follow a wrong procedure and thereafter you come to certain conclusions, you cannot hold the people guilty. You agree that Sanjay Gandhi became a sort of extra constitutional authority that time, and he used to instruct cabinet ministers. Did he ever instruct you also? Even in that report of Justice Shah Commission, I said, though he did not believe it, if somebody goes through the report, it is such a perverted report that whatever he has his conclusion, that certain people are to be found guilty. Therefore, whoever spoke against them, he gave credibility to that. Whoever spoke in favor of them, they are completely discarded. एक पूरा चैप्टर आप इमरजेंसी के ऊपर लिखने वाले हैं? बिल्कुल, या लिख चुके हैं? है, लेकिन let us wait, let us not divulge it. ये बहुत ही अजीब सी बात है कि वर्ष 2000 में, यानी आज से 20 साल पहले, ठीक इसी जगह जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, मैं उनका ये इंटरव्यू कर रहा था, और आज उनकी मृत्यु की खबर आपको दे रहा हूं। एक और बात आपने नोट की होगी
कि वर्ष 2000 के जो डिबेट्स थे, यानी आज से 20 साल पहले टीवी स्टूडियोज में जो डिबेट्स हुआ करते थे, जो इंटरव्यूज हुआ करते थे, वो कितनी शांति के साथ हुआ करते थे। उसमें चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं होता था, लोग एक दूसरे की बात को बिल्कुल काटते नहीं थे, बहुत शांति से इंटरव्यू हुआ करते थे। आपने देखा शांति से सारे सवाल भी पूछ लिए और प्रणब मुखर्जी ने बड़ी खुशी खुशी मुस्कुराते हुए हर मुश्किल सवाल का जवाब भी दिया, कोई नाराजगी नहीं। और उनके साथ उनके बगल में एक और बड़े नेता उस जमाने के बैठे हुए थे जिनका नाम है मधु दंडवते, और उन्होंने एक बार भी ना तो प्रणब मुखर्जी को बीच में टोका, ना ही अपनी बात सवाल पूछने से पहले उन्होंने कहने की कोशिश की। तब के डिबेट्स में 2000 जो वर्ष 2000 था और आज 2020 के डिबेट्स में और टीवी इंटरव्यूज में आप अंतर साफ समझ सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको उनका जो इंटरव्यू दिखाया था, जिस दौरान मैंने उनसे बात की थी, उसके बाद 2012 में, यानी इस इंटरव्यू के 12 साल बाद जब मैंने दोबारा उनसे बात की, जब वो राष्ट्रपति बनने वाले थे, तो एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता, और वो ये कि वो कई मौकों पर प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, क्या उन्हें कभी इस बात का मलाल होता है? और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, ये बात उन्होंने कभी किसी को बताई नहीं कि उन्हें भी किसी चीज का मलाल है या नहीं। वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्या उन्हें इस बात का मलाल कभी था? आज आपको सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था तब। देश में ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि आपकी जो असली डेस्टिनेशन थी वो राष्ट्रपति भवन नहीं बल्कि 7 रेस कोर्स रोड थी। वो आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए थी आपकी सीनियरिटी को देखते हुए। आपको ऐसा लगता है कि लास्ट लेग में आपका रोड मैप बदल गया और 7 RCR आप क्रॉस करके और फिर डेस्टिनेशन राष्ट्रपति भवन हो गया? नहीं, ऐसे नहीं मैं समझता हूँ। मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, मैं आई एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ टाइम्स दैट इन 2004 when Dr. Manmohan Singh was chosen as the Prime Minister, सोनिया जी जब डिसीजन लिया, it was the most appropriate decision and the most competent person has been chosen as the Prime Minister of the country to lead the government, and he has done very efficiently and competently, and मुझे मौका मिला उनका नेतृत्व में काम करने के लिए। मनमोहन सिंह जी ने आपके लीडरशिप में काम किया, फिर आपने उनकी लीडरशिप में काम किया, और अब अगेन मनमोहन सिंह जी की बारी है आपको सर बोलने की। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसमें कोई ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मनमोहन सिंह, पहले प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह के बॉस रहे, फिर मनमोहन सिंह उनके बॉस हो गए, और फिर वो दोबारा मनमोहन सिंह के बॉस हो गए। ये कैसी जीवन की जो उतार चढ़ाव है वो आप प्रणब मुखर्जी के जीवन से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। एक और खास बात यह है कि प्रणब मुखर्जी ज्यादातर जितने भी संवाद करते थे अंग्रेजी में ही बोलते थे। बहुत कम ऐसा हुआ है जब वो हिंदी में बात करते थे। इस इंटरव्यू में मैंने खास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जैसा भी हो सके लेकिन कोशिश कीजिए कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आप हिंदी में बात कीजिए, और उन्होंने इस इंटरव्यू में हिंदी में बात की इस दौरान, और अपनी हिंदी को देखकर उस समय भी बड़े खुश हुए थे। बाद में जब उन्होंने ये इंटरव्यू देखा तो उनकी जो पहली टिप्पणी थी वो ये थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल सकता हूं। जी परिवार के साथ प्रणब मुखर्जी के बड़े अच्छे और बड़े अटूट संबंध रहे, अटूट रिश्ता रहा। युवा नेता से लेकर राष्ट्रपति बनने तक के सफर में वो कई बार हमारे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए, कभी कांग्रेस के नेता के तौर पर, कभी वित्त मंत्री के तौर पर, कभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर, और कभी राष्ट्रपति रहते हुए भी वो जी मीडिया के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी जब देश के वित्त मंत्री थे तब वो जी मीडिया के कार्यक्रम में, हमारा जो चैनल है जी बिजनेस, उसके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 2012 की तस्वीर है। जी बिजनेस का एक कार्यक्रम था और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और जी बिजनेस के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास तौर पर आए थे। एसएल ग्रुप के प्रमोटर और चेयरमैन को भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस समय उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पुरानी यादें हैं जो हमारी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद वर्ष 2017 में प्रणब मुखर्जी जी मीडिया की प्रमोटर कंपनी एसएल ग्रुप के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारे एक और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए, और इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं। वैसे तो राष्ट्रपति
प्राइवेट आयोजनों में कभी जाते नहीं हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे बीच आए। बहुत भव्य कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों एक साथ शामिल थे। आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत बड़ा दिन है, आज जोड़ने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इस वक्त हमारे बीच हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मंच पर लेकर आएं। तो सारा देश उन्हें मिस करेगा, सारा देश प्रणब मुखर्जी को आज श्रद्धांजलि दे रहा है, याद कर रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन जी मीडिया का पूरा परिवार भी आज उन्हें बहुत मिस कर रहा है। आगे भी हम उन्हें बहुत मिस करेंगे और हम भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ उनका रिश्ता कुछ अलग तरीके का रिश्ता रहा है, इसलिए हमें थोड़ा बाकी लोगों से और भी ज्यादा आज दुख हो रहा है। और आज जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज वो सारे दिन, वो सारे मौके याद आ रहे हैं जब हम उनसे मिले, जब वो यहाँ इस स्टूडियो में, इस दफ्तर में आए और जब जब उन्होंने हमारे कार्यक्रमों में आने की सहमति हमें जताई। इसलिए आज हम खास तौर पर उन्हें आप सबकी ओर से भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.